میں قدم ہے تیرا، حدوث جز میں قدم ہے تیرا، بقا کو تیری فنا نہیں ہے، ازل تیری ابتدا نہیں ہے، ابد تیری انتہا نہیں ہے، ازل تیری ابتدا نہیں ہے، ابد تیری انتہا نہیں ہے، تو ہی ہے سیف و قلم کا مالک، جو تو ہے وہ دوسرا نہیں ہے، تو ہی ہے سیف و قلم کا مالک، جو تو ہے وہ دوسرا نہیں ہے، جو تو ہے وہ دوسرا نہیں ہے، تیرا تقابل کروں میں کس سے، کوئی تیری گرد پا نہیں ہے، تیرا تقابل کروں میں کس سے، کوئی تیری گرد پا نہیں ہے، اور کہنے والے کو راہ دے کر یہ کہہ رہی ہے جدار کعبہ، ایک آنے والے کو راہ دے کر یہ کہہ رہی ہے جدار کعبہ۔ میں نے ہر شاعر کو بڑے انہماک کے ساتھ اور بڑی مصروفیت کے ساتھ بہت ہی دل سے سنا ہے، میں بھی امید رکھتا ہوں کہ جو شاعر جن کو میں نے سنا وہ خود بھاگ گئے ہیں، جنہوں نے زیادہ وقت لیا ہے منظر نظرانے اکثر پیش کرنے کو، آپ کو یہاں نظر نہیں آتے ہیں، لہذا بڑی معذرت کے ساتھ میں بھی اب میں جانتا ہوں کہ آپ اس طرح نہیں سنیں گے جیسے میں نے سنا ہے، کیونکہ میں مقطع محفل بھی ہوں، لہذا وقت بھی نہیں ہے کہ اس طرح سے سنیں کہ جیسے پہلے سنے تھے۔ ایک آنے والے کو راہ دے کر یہ کہہ رہی ہے جدار کعبہ، ایک آنے والے کو راہ دے کر یہ کہہ رہی ہے جدار کعبہ، یہ کہہ رہی ہے جدار کعبہ، یہ گھر کے لوگوں کے واسطے ہے، عوام کا راستہ آمد ہو اگر اس کی تو اللہ کے گھر ہو، دیوار میں در کر دیا یہ کہہ کے خدا نے، آ جاؤ علی تم کوئی مریم کے پسر ہو، نعرہ حیدری، ایک آنے والے کو راہ دے کر یہ کہہ رہی ہے جدار کعبہ، ایک آنے والے کو راہ دے کر یہ کہہ رہی ہے جدار کعبہ، یہ کہہ رہی ہے جدار کعبہ،
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन सय्यदना व हबीबना व तबीब नुफूसिना मौलाना मौला तक़नैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر علي عبادة صلوات سنیے گا میں بھی زیادہ وقت نہیں لوں گا بہت ہی مختصر سے وقت میں فضائل مولا کائنات بیان کر کے اپنی زحمت کو تمام کروں گا نبی گرامی قدر کی مشہور و معروف حدیث ہے ذکر و علی عبادت علی کا ذکر کرنا عبادت ہے اسی عبادت کی ترتیب کی 3 حدیثیں نبی کی حدیثوں کی کتابوں میں ملتی ہیں ایک النظر الی وجہ علی عبادت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے پھر دوسرے مرحلے میں نبی نے ارشاد فرمایا کہ ذکر و علی عبادت علی کا ذکر عبادت ہے تیسرے مرحلے پہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ حب و علی عبادت علی سے محبت کرنا عبادت ہے یہ تینوں حدیثیں اسی ترتیب سے ہیں الٹا نہیں کیا جا سکتا یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے نبی نے یہ کہا ہو کہ پہلے علی سے محبت کرنا عبادت ہے پھر دوسرے مرحلے پہ یہ کہا ہو کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے پھر تیسرے مرحلے پر یہ کہا ہو کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے نہیں اس ترتیب سے کہا ہے جس ترتیب سے میں نے پڑھا ہے پہلے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے دوسرے مرحلے پہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے اور تیسرے مرحلے پہ علی سے محبت کرنا عبادت ہے یہ الگ الگ سچویشن میں نبی نے ارشاد فرمایا ہے جانتے ہیں کہ علی کے چہرے کو وہ دیکھے گا جو علی کا دور درک کرے گا علی کے چہرے کو دیکھ کر عبادت کا مزہ وہ لے گا جس نے علی کو سامنے سے دیکھا ہو اور جس نے نہ دیکھا وہ کیا کرے تو کا ذکر ہو علی نے عبادت نہیں دیکھ کر کے عبادت کر پا رہے ہو تو علی کا ذکر کرو یہی عبادت ہے پھر تیسرے مرحلے پہ نبی آگے بڑھ گئے کہا ٹھیک ہے بہت سا ایسا زمانہ آنے والا ہے علی کے چاہنے والوں پر جہاں پر ذکر علی پر پابندیاں لگائی جائیں گی کہا نہیں ذکر علی کرنے کا موقع ملے تو حب و علی عبادت علی سے محبت کرو یہی عبادت ہے کتنا آسان عبادت کا طریقہ نبی نے دے دیا چلتے رہیے پھرتے رہیے مارکیٹ میں رہیے کہیں بھی رہیے دل میں اگر علی کی محبت ہے تو عبادت ہے اسی مولا کی آج ولادت کا دن جو گزر گئے لہذا آپ جب بطن مادر میں آئے ہیں وہ ساری واقعات میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ وقت نہیں ہے لہذا جب وقت ولادت قریب آیا فاطمہ بنت اسد اسد اللہ کی ماں اور اسد کی بیٹی فاطمہ بنت اسد خانے خدا کے قریب آئی آنے کے بعد اس نے بطن مبارک کو خانے کعبہ کی دیوار سے مس کیا مس کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں دعا کیا پروردگار میں ایمان رکھتی ہوں تجھ پر تیرے بھیجے ہوئے انبیاء و مرسلین پر اور تیری بھیجی ہوئی کتابوں اور صحف آسمانی پر تجھے حق تجھے واسطہ ہے تیرے انبیاء و مرسلین کا اور تجھے واسطہ اس مولود کا جو میرے شکم مقدس میں ہے ذرا معرفت فاطمہ بنت اسد تو دیکھیے کتنی معرفت ہے شکم میں رہنے والے بچے کی وہ یہ جانتی ہیں کہتے ہیں مجھے اس بچے کے حق کا واسطہ میری مشکل کو آسان کر دے فاطمہ بنت اسد جانتی ہے میرے شکم میں رہنے والا بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے بلکہ مشکل کشا ہے اگر اس کے حق کا واسطہ خدا کو دیا جائے تو مشکلیں آسان ہوتی ہیں لہذا جب فاطمہ بنت اسد نے جب علی مرتضیٰ کا اپنے بیٹے کا واسطہ دیا ہے تو مشکل آسان ہوئی خانے کعبہ کی دیوار شک ہوئی اور فاطمہ بنت اسد بجائے یہ کہ ڈر جائے دیکھیے عورت ہے مزاجت
होती हैं, जो कुत्ते से और बिल्लियों से डर जाए मोजजादी तौर पर कोई दीवार फट जाए तो जरा सोचिए उनका हाल क्या होगा, तो बेहोश हो जाएंगे। मगर यहाँ देखिए वो आम माँ नहीं है, शेरे खुदा की माँ है, कोई आम माँ नहीं है, असदुल्लाह की माँ है, ये कोई आम माँ नहीं है, मुश्किल कुशा की माँ है। बजाय ये कि घबराए, बजाय ये कि डरे, खाने काबा की दीवार शक हुई, समझ गई मेरी मुश्किल हल हो गई, खाने खुदा के अंदर गई। और तारीख कहती है कि जौफे काबा में अली की विलादत हुई। खाने काबा की दीवार जो कि तू वैसे ही फिर से मुत्तसिल हो गई, मगर दीवार काबा का निशान वो जो शक हुआ था आज भी बाकी है। लाख मुनाफिकीन ने चाहा कि मिटा दिया जाए, मगर जो खुदा निशान को बाकी रखना चाहे उसे दुनिया वाली ये मखलूकात कहाँ मिटा पाए। लिहाजा 3 दिन हो गए मौलाए कायनात जौफे काबा में अपनी मादरे गिरामी के साथ। लोग परेशान हैरान, औरत गई है अभी तक वापस नहीं आई, कुफ्फार और मुशरिकीन परेशान, दरवाजा खोलना चाहते हैं, किसी तरह दरवाजा खोलकर पता किया जाए ये अंदर कर क्या रही हैं, क्या हुआ इनका, जिंदा है नहीं है। लिहाजा कोई भी चाबी लगाई गई दरवाजा न खुला, हर चाबी को इस्तेमाल किया गया, जो खाने खुदा की चाबी न भी थी उसको भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन दरवाजे खुदा, दरवाजे खाने खुदा न खुला। तीसरे दिन जब हबीब खुदा आए खाने खुदा के करीब, जब हबीब खुदा आए खाने खुदा के करीब, तो उन्होंने फिर देखा, तीसरा दिन हुआ, दीवार काबा फिर से शक हुई, वहीं से फातिमा बिन्त असद घर बाहर आई जहां से अंदर गई थी। चाहती तो दरवाजे से आ जाती थी, मगर आई उसी दर से जो उनके लिए खास बनाया गया था। जब आई है तो परेशान भी थी, बहरहाल माँ थी, परेशानी का ये तो इस्तेहकाक बनता है और लाजिमा भी है कि माँ का, कि माँ अगर बेटा बच्चा, अगर बच्चा दुनिया में आता है तो उसका लाजिमा ये होता है कि बच्चा रोता है, और जब रोता है तो माँ को इत्मीनान हासिल होता है कि मेरा बच्चा सलामत है, मेरा बच्चा जिंदा है। लेकिन ये अली है, ये आम बच्चों की तरह नहीं है, न आंखें खोली न गिरिया किया। आंखें कैसे खोलते, दाएं देखते तो बुद्धि बुद्ध थे, बाएं देखते तो बुद्धि बुद्ध थे, सामने देखते तो बुद्धि बुद्ध थे। ये ऐनुल्लाह निगाहें, अल्लाह की आंखें, ज़ियारत करें तो क्या इन बुद्धों की ज़ियारत करें? ये कैसे अली बर्दाश्त कर सकते थे, ये ऐनुल्लाही आंखें कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि आंखें खोले तो ज़ियारत बुद्धों की हो। लिहाजा जब नबी ने अली को हाथों पर लिया, अली तुमने आंखें क्यों ना खोली, अली तुमने आंखें क्यों ना खोली? कहा इसलिए ना खोली, मैं पहले देखता तो बुतों को देखता, मैंने इरादा कर लिया था अगर देखूंगा तो सबसे पहले आपका चेहरा देखूंगा तो सबसे पहले आपका चेहरा देखूंगा। लिहाजा मैंने सबसे पहले निगाह आपके लिए मुअय्यन कर दी थी। अब मैंने आंखों को खोला, अब अली ने जो आंखों को खोला, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। आए अली कुछ पढ़ो, सुनाओ, क्या माँ करो या रसूल अल्लाह, क्या पढ़ूं, हुक्म फरमाइए। तो अली ने, तो नबी ने कहा कि अली ऐसा करो, आसमानी किताबों को पढ़ो। अली ने इंजील पढ़ी, तौरात पढ़ी, ज़बूर पढ़ी, कुरान पढ़ा, सारी आसमानी किताबों, सोफे आसमानी का की तिलावत फरमाई। तिलावत फरमाने के बाद नबी ने तारीफ भी की है, ऐ अली तुमने इंजील हजरत ईसा से बेहतर पढ़ी है, तुमने तौरात हजरत मूसा से बेहतर पढ़ी है, ऐ अली तुमने ज़बूर हजरत दाऊद से बेहतर पढ़ी है, लेकिन कुरान बिल्कुल मेरी तरह पढ़ते हो, कुरान बिल्कुल मेरी तरह से पढ़ते हो। जरा तवज्जो फरमाइएगा कि अली 30 आमुल फील में नाजिल हुए हैं, अली 30 आमुल फील में पैदा हुए हैं, मगर कुरान कब नाजिल होगा? 10 साल के बाद। कुरान कब नाजिल होगा? अभी 10 साल के बाद नबी जब ऐलान नबूवत करेंगे, जब तब
तब कुरान के नुज़ूल का सिलसिला जारी होगा। 10 साल अभी बाकी है और अली दस्ते नबूवत पर कुरान की तिलावत कर रहे हैं और कुरान की कोई और आयत की तिलावत नहीं करते हैं बल्कि सूरह मोमिनून की तिलावत करते हैं और कहते हैं कद अफ़लहल मोमिनून, मोमिनीन कामयाब हो गए। अरे मोमिनीन कामयाब क्यों ना हो, अमीरुल मोमिनीन जो आ गया है, मोमिनीन क्यों ना कामयाब होंगे, अब तो अमीरुल मोमिनीन आ गए हैं। लिहाजा दस्ते रिसालत पर अली तिलावत कुरान कर रहे हैं और नबी तायद भी कर रहे हैं। लिहाजा अली कहते ही उसे हैं जो नुज़ूल कुरान का मोहताज ना हो। अली वो है जो कुरान के नुज़ूल का मोहताज ना हो। अली तो वो है कि जिनके बच्चे लौहे महफूज का मुताला करते हैं। अली तो वो है कि जिनके बच्चे लौहे महफूज का मुताला करते हैं। लिहाजा अब जमाने के कुछ मुअर्रिखीन जो मुनाफिकीन हैं वो एतराज करते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि अली 3 दिन की उम्र में नबी के हाथों पर आसमानी किताबों की तिलावत कर रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है कि 3 दिन का बच्चा नबी के हाथों पर बोल रहा हो और सिर्फ बोल नहीं रहा हो बल्कि आसमानी किताबों की तिलावत कर रहा हो, तो ये कैसे मुमकिन है? मैं कहूंगा तुम्हें शायद पता नहीं है, तुमने तिलावत कुरान नहीं किया है। जब हजरत ईसा पर, जब हजरत मरियम पर यहूदियों ने तोहमतें लगाई कि तू नौज़ुबिल्लाह हारून की बहन है। हाफिज जी ज्यादा मुझे आयत कुरानी याद नहीं है मगर मफहूम में आयत यही है कि तू हारून की बहन हो गई। हारून उस जमाने का बहुत ही बदबख्त और बदमाश इंसान था जिसकी मिसाल हजरत मरियम की शबाहत दी थी और जिसको कहा कि यार क्या तू हारून की बहन हो गई है, नौज़ुबिल्लाह। लिहाजा यहूदियों ने इल्जाम लगाया हजरत मरियम पर, लेकिन खुदा ने कहा नहीं, मरियम कुछ बोलना नहीं है, बस बच्चे की तरफ इशारा कर देना है, जो कुछ फैसला करेगा बच्चा करेगा। हजरत ईसा कमसिन है, गहवारे में है, महद में है। लिहाजा हजरत ईसा की तरफ मुतवज्जे किया कि ये बच्चा बताएगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। हजरत ईसा गहवारे में गोया हुए, इब्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या, मैं खुदा का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे किताब दिया है, मुझे नबी बनाया है। लिहाजा जब हजरत ईसा, हदीसों में मिलता है जब तक सारे नबियों ने अली की विलायत का इकरार न किया तब तक उन्हें नबी नहीं बनाया गया, तब तक उन्हें नबी नहीं बनाया गया। तो इसका मतलब यह है कि हजरत ईसा भी तब तक नबी नहीं बन सकते जब तक अली की विलायत का इकरार नहीं कर सकते। तो मानना पड़ेगा जब हजरत ईसा जो अली की विलायत का इकरार किए बिना नबी नहीं बन सकते और वो गहवारे में आकर के इस कमसिनी के आलम में आकर गुफ्तगू कर सकते हैं, तो जो फखरे ईसा अली हो, अगर वो 3 दिन की उम्र में नबी के दस्ते रिसालत पर आकर के कुरान पढ़ने लगे, तौरात पढ़ने लगे, ज़बूर पढ़ने लगे, क्या बात है। और फिर छोड़िए, इसका एक दूसरा जवाब ये भी है, ये न देखो कौन तिलावत कर रहा है, ये ना देखो कौन तिलावत कर रहा है, ये देखो किसके हाथों पर तिलावत कर रहा है। ये ना देखो कौन तिलावत कर रहा है, 3 दिन का बच्चा हो, 4 दिन का बच्चा हो, 4 साल का बच्चा हो, ये ना देखो कौन तिलावत कर रहा है, ये देखो किसके हाथों पर तिलावत कर रहा है। अरे मेरा नबी तो वो है कि जो मक्के की गलियों में रास्ता चलते हुए अगर खाक के जर्रों को हाथों पर उठा लेते हैं तो उन्हें कलमा पढ़वा दिया करते हैं। मेरे मौला का एक लक़ब है अबू तुराब, यानी जर्रों का बाप, मिट्टी का बाप, जमीन का बाप, अर्ज का बाप, अबू तुराब। लिहाजा मेरा नबी तो वो है जो मक्के की गलियों में रास्ता चलते हुए खाक के जर्रे को हाथों पर उठा लेते हैं तो कलमा पढ़वा दिया करते हैं। तो जिस नबी के हाथों पर आकर, जिस नबी के हाथों पर आकर, जिस नबी के हाथों पर आकर खाक के जर्रे कलमा पढ़ने लगे,
वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और आगे बढ़ो। जब भी कोई पैदा होता है इस दुनिया में, ये सारे फिक़हों का ये मुत्तफ़क़ा अलैह फैसला है कि पैदा होने वाला बच्चा भी नजीस होता है और पैदा करने वाली माँ भी नजीस, और जिस जगह पैदा होता है वो जगह भी नजीस। ये सारी फिक़हों का मुत्तफ़क़ा फैसला है। पैदा करने वाली माँ भी नजीस, पैदा होने वाला बच्चा भी नजीस, और पैदा होने वाली जगह, जिस जगह बच्चा पैदा हुआ है वो जगह भी नजीस है। लिहाजा कोई झूठी से झूठी तारीख और झूठी से झूठी रवायत बताइए कि अली के विलादत के बाद काबे को धोया गया हो। या कोई झूठी से झूठी रवायत बताइए कि अली की विलादत के बाद मां ने गुस्ले किया हो, या अली की विलादत के बाद उसने मौलूद अली ने किया हो। कोई ऐसी रवायत नहीं मिलती है। नहीं खाने काबा को धोया गया, तो इसका मतलब यह है अली उस ताहिर का नाम है, अली उस मुतहर का नाम है कि जिसकी शान में आए तत्हीर का नुज़ूल हुआ है। एक सलावत पढ़ने में मोहम्मद अली की इबादत, अली का शुक्र इबादत है। हाफिज जी का की फरमाइश है, इनका हुक्म है, लिहाजा जिक्र अली ही करने के लिए बैठे हैं और जिक्र अली सुनने के लिए हम सब बैठे हुए हैं, हम सब जमा है और जिक्र अली इबादत है। इस तारीख रात में भी देखिए माशाअल्लाह से आपकी नींदें उड़ गई हैं। बहुत तेज आ रही थी मगर जिक्र अली में मुझे भी अंदर से बेदार कर दिया। आया है तो और जबरदस्त तरीके से लेना है। मौलाए कायनात झूम झूम बढ़े और अनफान शबाब को चखा, जवान हुए। और ये हर रिवायत कहती है बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, सारे आलम इस्लाम कहते हैं कि अली बिना सोचे समझे जवाब दिया करते थे। कोई भी सवाल करता था, ये दुनिया के कितना भी बड़ा साइंसदान हो, कितना बड़ा वो आलिम हो, कितना बड़ा वो साइंटिस्ट हो, कितना बड़ा वो किसी भी इल्म में माहिर हो, मगर कभी भी उससे कोई सवाल होता है तो उसे भी जवाब देने में थोड़ा सा वक्त लगता है, चाहे कितना बड़ा प्रोफेसर हो। मगर ये अली का कमाल था, कोई भी मैदान का आए प्रोफेसर, कोई भी मैदान का जानने वाला आ जाए, चाहे अली का इम्तिहान ही लेना चाहे, इधर सवाल होता था मेरा मौला फौरन जवाब दे दिया करते, बिला तामुल, बिला फिक्र के, बिला गौर के, बिला तदब्बुर, बिला तफक्कुर, कुछ सोचते नहीं थे। अगर सोचे तो अली कैसा है? अली होता ही वो है जो बिना सोचे जवाब दे, और जवाब भी ऐसा दे कि सामने वाला मुतमईन हो जाए। जबकि सवालात बहुत अच्छे अच्छे भी हुए और बहुत ही बेतुके सवालात भी किए गए। ये आली मेरे सर में बाल कितने हैं, ये आली आसमान पे सितारे कितने हैं, इस तरीके के भी सवालात हुए हैं। मौला ने कहा ऐसे ऐसे सवालात करो जो तुम्हारे इल्म में इजाफे का सबब बने, ऐसे सवाल न करो कि जो फायदा हो, जो फजूल हो। अगर मैं बता दूं कि आसमान में सितारे 1 करोड़ हैं, तो क्या तू अली को झूठा साबित करेगा कि नहीं है? गिन के बता दे तो मुझे झूठा साबित कर ले। अगर मैं कहूं तुम्हारे बाल में, तुम्हारे सर में इतने बाल हैं, तो क्या तू गिनने बैठेगा? और फिर अली को झूठा कैसे साबित करेगा? लिहाजा ऐसे सवाल किया करो जो तुम्हारे इल्म में इजाफे का सबब हो। लिहाजा मिंबर कूफा पे मेरा मौला कह रहा है सलूनी सलूनी माशिअतुन क़ब्ल अन तफ़क़िहूनी, जो चाहो मुझसे सवाल करो इससे कबल कि मैं तुम मुझे खो दो। लिहाजा एक मुनाफिक खड़ा हुआ, वो इम्तिहान लेना चाह रहा है मौला जी का, इम्तिहान लेना चाह रहा है। कहा या अली ये बताइए आज मैं क्या खाने वाला हूं। जब अली ने दावा कर दिया जो चाहो पूछो, तो भाई कुछ भी पूछो है? तो उसने कहा ये बताइए मैं क्या खाने वाला हूं। कहा कि मौला ने फौरन कहा कि तू खीर खाने वाला है, तू खीर खाने वाला है।
कहा या अली आज मैं यही नहीं खाऊंगा, या अली आज मैं यही नहीं खाऊंगा। कहा तू खा या ना खा, अली के दहन से ये बात निकल गई है, अली के दहन से निकला हुआ जुमला लोगों की तकदीर बन जाया करता, लिहाजा तू आज खीर ही खा करके रहेगा। वो आया, घर आया, आने के बाद बेगम साहिबा मौजूद थी। कहा बेगम साहिबा क्या पक्का है? कहा खीर बनी है, खीर बनी है। कहा नहीं, मैं आज तो अली से चैलेंज करके आ गया हूँ कि मैं आज खीर ही नहीं खाऊंगा। देखो कुछ और का नहीं, बस यही है। कहा पड़ोसियों में पता कर लो, कुछ और पता हो किसी के घर में, लिहाजा कोई और कैसा हो मैं खाकर अली को झूठा साबित कर दूं। पड़ोस में पता करके उसकी ज़ौजा, कुछ किसी के घर कुछ पका है, सबके घर खीर पकी हुई है। अब क्या करें? पड़ोसियों में पता किया, पूरे शहर कूफा में पता किया, कोई घर ऐसा नहीं था जहाँ खीर के अलावा कुछ पका हो। सारा घर खीर से भरा हुआ है, खीर के अलावा कुछ भी नहीं है कि खाकर अली को झूठा कर साबित करे। खीर ही खीर। अब मैं एक जुमला यहाँ कहना चाहता हूँ, शायद ये लिसानुल्लाह का करम था, ये लिसानुल्लाह का करम था। हो सकता है किसी के घर में कुछ पक रहा हो, खीर बन जाती हो, कोई कुछ बना रहा हो, गोभी बन रही हो, बैगन बना रहा हो, कोई रोटी बना रहा हो, कोई कुछ बना रहा हो, कोई गोश्त बना रहा हो, लेकिन आज अली ने कह दिया तो कुछ नहीं बनेगा, बस खीर बनेगा। लिहाजा हर घर में खीर। अब परेशान हो गया, अब खाऊं तो कैसे खाऊं? अली को दावा भी कर दिया, चैलेंज भी कर दिया है, अली को झूठा भी साबित करना है। लिहाजा परेशान, मुस्तरिब, इस मुतहय्यर, सरगर्दान कूफे शहर के बाहर आया। आने के बाद देखा एक काफिला आ रहा है। जब काफिला करीब आया, एक काफिले वालों बहुत भूखा हूँ, तुम्हारे पास कोई ग़िज़ा हो तो खिला दो। जब दस्तरखान उतारा गया तो देखा भाई मैं भूखा जरूर हूँ मगर खीर नहीं खाना चाहता, मैं खीर नहीं खाना चाहता। लिहाजा काफिले वाले भी बड़े खुददार थे, बड़े गैरतमंद थे। उसे पकड़ लिया, कहा कि जो हमसे सवाल करता है उसे खाली हाथ जाने नहीं देते, जो हमसे सवाल करता है उसे कभी खाली हाथ वापस नहीं जाने देते। अब तूने खाने का सवाल किया है तो तुझे भूखा जाने नहीं देंगे। पकड़ लिया और वो छुड़ा रहा है, भागना चाह रहा है, पकड़ कर जकड़ लिया और मार मार करके खीर खिलाया, मार मार करके खीर खिलाया। जब उतरा हुआ चेहरा खीर खा करके, जब उतरा हुआ चेहरा लेकर के शहर कूफा के अंदर आया तो सबसे पहला सामना मेरे मौला का हो गया। अब मेरे मौला का सबसे पहला सवाल हो गया, क्या खाया? अली खीर नहीं खाया। का झूठे अली से झूठ बोलता है, क्यों नहीं कहता कि खीर भी खाया है और मार भी खाया है? मालिक की बारगाह में हम दस्त बदवा हैं। मौलूद काबा का वास्ता, मौलूद हरम का वास्ता, मौलाए मुतक़ियान अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता, हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमाए। वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र अली करने की तौफीक अता फरमाए। हम सबके दिलों में मोहब्बत अहले बैत में और इजाफा फरमाए। वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारे तमाम गुनाह कबीरा सगीरा की इस महफिल अली के सदक़े में तमाम गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ फरमाए। वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद के जो मुमिनीन यहाँ पर हाजिर हैं उनके दिली मुरादों को पूरा फरमा। मुमिनीन ईमान को बीमार करबला का वास्ता शिफाए कामिल और आजिल अता फरमा। वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का हम सबको अहले बैत अतार मुस्लिम की सीरत तजब्बा पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। हम सबको आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। भाईचारगी के साथ जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। हमारे मां के ज़ुहूर में ताज़ीम फरमा। जवान अंसार हम सबको शुमार फरमा। मना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक आवाज़ बुलंद नारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।